Hello everyone. In this video, we are going to see important news snippets from The Hindu. Starting with first article, we can relate it with GS1, GS3, GS4 for disaster management, geography and ethics. दिल्ली में cooling zones बनाए हैं to bear the heat. Water, ORS, first aid will be provided. ये कुछ zones हैं वहाँ पे. And relief fans are being established at different locations in order to provide quick response कि अगर कोई mishappening हो जाती है. So, example के तौर पे use करो cooling zones in Delhi. Even you can use this in governance. Moving to next, we have article from GS2. Use this example in your optional paper and vulnerable section से आप relate करेंगे. Transgenders and women के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने सहेली कार्ड्स लॉन्च किए हैं which will provide free bus services around Delhi. But problem क्या आ रही है exclusion की. Still उन्होंने बोला है कि we have included transgenders but they are denied services. So you can use this in sociology, exclusion वाले पार्ट पे, transgender वाले पार्ट पे and और अगर इसको पॉजिटिव लाइट में दिखाना है तो आप विमेन वाले पार्ट पे और ट्रांसजेंडर वाले पार्ट पे इसमें ड्रॉबैक्स दिखाने हैं कि उनको क्या फेस कर रहे हैं वो, तो आप उसको एक्सक्लूजन के तौर पे दिखा सकते हो. नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव फ्रॉम GS2, GS3 के साथ रिलेट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी. आर्टिकल वाज अबाउट रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार. इंट्रो कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम कंटेक्स्ट बेस्ड इंट्रो कर सकते हैं, जैसे कि म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ एंड इंडिया पॉलिसी क्या है. इंडिया की पॉलिसी टूवर्ड्स म्यांमार आफ्टर मिलिट्री कू इज स्ट्रेटेजिक रियलिज्म बिकॉज वी आर having 1643, we can say near about 1650 kilometer long shared border. So we need to engage with Myanmar. Why Myanmar matters? Number one reason is closeness with China. Excessively अगर वो depend हो जाएगा चाइना के ऊपर तो इंडिया के लिए वो बहुत एक नेगेटिव थिंग होगी. So अगर हम कंप्लीट डिसएंगेजमेंट कर देते हैं तो हमारा इन्फ्लुएंस टोटली लॉस्ट हो जाएगा. स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, वी नीड म्यांमार फॉर आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, neighborhood first policy, land bridge to Southeast Asia and connecting Northeast with ASEAN countries. ये चीज़ें जो है ना ये permanently you need to remember whenever there is a question around neighborhood. Divergence क्या है हम दोनों के relations में? Number one factor is China factor and this is the common problem for our neighborhood. कहीं पे भी ले लो, China factor is the permanent problem. Although reasons are different. For example, with Myanmar, China is building China-Myanmar Economic Corridor and Kyakfu Port Project. Next, talking about the infrastructure, we have project delays and infra security problem due to continuous military action in Myanmar. Example, Kaladan Multimodal Project, उसमें जो रोड वाली सेगमेंट है वो अभी भी इनकम्प्लीट है. Then we have border instability because काफ़ी ज़्यादा हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लगती हैं बॉर्डर के साथ, तो वहाँ पे उल्फा जैसी फैक्शंस एक्टिवेट रहती हैं. Then मिलिट्री हंता टेकिंग ओवर. Ethnic armed organizations are very active. Pro-democracy resistance, PDF party that is actively working for democracy. And why India is seeking engagement? Because of the trade factor. We are having 1.95 billion trade, which is very less, but we wanted to explore more. Then rupee kyat settlement. As India is moving beyond dollar, resources, critical minerals and rare earth sectors can grow. Geopolitical, China factor. We have seen internal security risk hai, we need to coordinate with them. Anti-crime efforts, bilateral cooperation is taking place between Myanmar and India over the cybercrime cells that are active in Myanmar, जहाँ से scams होते हैं. म्यांमार में बैठ के काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स होते हैं जो इंडिया में किए जाते हैं, तो उस पर भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. देन वी हैव एजुकेशनल एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, जिसमें हम स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर मेकोंग गंगा कोऑपरेशन. देन बुद्धिज्म कॉमन फैक्टर है. Next we have connectivity. We need Myanmar to connect to Northeast and secondly ASEAN countries. Starting with Northeast, we have Kaladan multimodal transport project. Here we have Kolkata, here we have Mizoram. जब हमने Northeast जाना है, we have two routes. Either we can go through Siliguri corridor or we can go through Bangladesh. जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है दैट इज ओनली 21 किलोमीटर नैरो, तो इट इज़ अनस्टेबल, यहाँ से नहीं जा सकते हम बांग्लादेश के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज पॉलिसी अनसर्टिनिटीज. तो हमने इसका ऑल्टरनेटिव रूट निकाला. विद कोलकाता, वी आर गोइंग टू कनेक्ट कोलकाता विद सितवे पोर्ट दैट इज डेवलप्ड बाय इंडिया
and with various inland waterways and highway projects, we are going to connect with Mizoram. And then there are some highways to connect with other northeast states. In this way, we are going to save our distance, time, as well as security. Next, we are working to connect ASEAN with India through India, Myanmar, Thailand trilateral highway. रूट क्या होगा? मोरे इन मणिपुर टू माइसोत इन थाईलैंड को कनेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इन द मैप, यहाँ से कनेक्शन होगा, यहाँ से जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, एंड देन वी आर फाइनली लैंडिंग अपॉन थाईलैंड, माइसोत. We are also planning to expand this project to Cambodia, Laos and Vietnam. And this is also a PYQ. Next we have India की diplomatic approach कैसी होनी चाहिए? Pragmatic engagement होना चाहिए, isolation नहीं होना चाहिए. Maintain working relations with military junta. Continue humanitarian assistance. हम already provide कर रहे हैं. Operation Brahma. ठीक है. Then we have conclusion. We need to prepare one such conclusion that can be used widely. So here it is, but you can also use 5S वाली approach. ठीक है. Pragmatism, which is security पे focus करो, strategy बनाओ, economy पे होनी चाहिए हमारी focus और stability पे होनी चाहिए. So we have, we can write triple SE. Security, strategy, stability, economy. And most important, confidence building measures. ये वाला अगर मुझे अफगानिस्तान के ऊपर रिलेट करना हो तो आई थिंक उस पर भी मैं ये लगा सकती हूँ. नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम IRGS2. इट वॉज अबाउट कि नेपाल और इंडिया को एक दूसरे को बॉर्डर के इश्यूज पे बोलना कम कर देना चाहिए एंड वी नीड टू डिप्लोमेटिकली एंगेज ऑन दैट. इंट्रो में फिर से हम यूज़ कर सकते हैं कि कितना हमारे पास बॉर्डर है, लेंथ क्या है, या रिसेंट कोई इशू हम उसमें मेंशन कर सकते हैं. डाइवर्जेंस कहाँ पे आती है? ये आर्टिकल में गिवन था. लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी डिस्प्यूट. सी, इंडिया का ये पार्ट पे डिस्प्यूट है. नेपाल बोल रहे हैं दिस बिलोंग्स टू नेपाल, इंडिया से इसकी इंडिया का पार्ट है. ये हम मैपिंग के थ्रू शो कर सकते हैं, एक देखो ट्रायंगल के थ्रू. द प्रॉब्लम इज नेपाल सेज दैट दिस बिलोंग्स टू नेपाल एज पर 1816 ट्रीटी ऑफ सुगोली, इन विच ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन दैट ट्रीटी इज नेपाल ने 1/3 एरिया ब्रिटिशर्स को दे दिया था. अब इंडिपेंडेंस के बाद वो जो 1/3 एरिया था वो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को दे दिया. तो अब नेपाल बोलता है कि एज पर द ट्रीटी हमने ही दिया था तो हमें वो वापस चाहिए. प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई? बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा. ये डिस्प्यूटेड एरिया से होकर जाएगा रूट, इसलिए प्रॉब्लम दोबारा से राइज हो रही है. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नेपाल्स रिलीज ऑफ न्यू पॉलिटिकल मैप इन 2020 वेयर इन नेपाल हैज शोड दैट दिस एरिया बिलोंग टू नेपाल. नेपाल परसीव्स पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाय इंडिया, और इसको वो क्या बोलते हैं कि बिग ब्रदर अप्रोच. बट ऑल्दो इंडिया हैज़ रिड्यूस दिस, अब इंडिया इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी चेंज हो गई है. और नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद जनरेशनल शिफ्ट की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. हम सॉल्व कैसे करना चाहते हैं? इंडिया वॉन्ट्स बायलैटरल डायलॉग, थर्ड पार्टी एंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए, स्पेशली चाइना. वी हैव कन्वर्जेंस, मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन. वी हैव ओपन बॉर्डर्स विद नेपाल. There are integrated checkposts like बनबासा लैंड पोर्ट उत्तराखंड. We need to add one example. या तो ये याद रख लो या कोई और एग्जाम्पल. तो हमें या जब हम लिखेंगे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, वी नीड टू सब्सटेंशिएट विथ वन एग्जाम्पल. जॉइंट एफर्ट्स अगेंस्ट स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग एंड फेक करेंसी. वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स आर देयर, कोसी को लेके, गंडक रिवर को लेके, करनाली को लेके एंड महाकाली को लेके. ट्रेड एंड ट्रांजिट अरेंजमेंट्स. अच्छा, अब हमने न्यू इसमें डेवलपमेंट की है, हमने यहाँ पे UPI पेमेंट स्टार्ट कर दी है. यहाँ से हम किसी भी मर्चेंट को, याद रखना मर्चेंट को, पीपल टू पीपल नहीं है, पीपल टू मर्चेंट है. तो हम QR कोड कौन सा? फ़ोन पे. ये फ़ोन पे हमारा वाला फ़ोन पे नहीं है, यहाँ पे F से फ़ोन पे है, ये नेपाल का फ़ोन पे है. तो वहाँ पे हम पैसे भेज सकते हैं फ्रॉम पीपल टू मर्चेंट. देन वी हैव सम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट याद कर लो, रेलवे लिंक्स कर लो. इसमें से जो हम याद कर सकते हैं वो है जयानगर कुर्था ऑपरेशनल है, तो इसको याद कर लो. देन वी हैव एनर्जी कोऑपरेशन, पेट्रोलियम पाइपलाइन. ये इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? साउथ एशिया की ये सबसे पहली पेट्रोलियम पाइपलाइन है जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस कर रही है. मोतीहारी इन इंडिया टू अमलेखगंज इन नेपाल. देन वी हैव हाइड्रो पावर एग्रीमेंट. नेपाल हमें सप्लाई करेगा हाइड्रो पावर. एक ये याद कर लो, अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. जब हम ये लिखेंगे इसके साथ हम एग्जांपल ये देंगे, लेकिन इसको याद रखना है ये इंडिया का प्रोजेक्ट है, इंडिया इसको ओन करेगा, इंडिया इसको ऑपरेट करेगा फॉर 25 ईयर्स.
और उसके बाद ये ट्रांसफ़र कर देगा किसको, नेपाल को। पीपल टू पीपल कनेक्ट में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, क्योंकि यू नो दैट बुद्धिस्ट एंड रामायणा सर्किट्स हैं हमारे पास, उसमें वी हैव लुम्बिनी एंड जनकपुर। एक कंक्लूजन डेवलप कर लो और उसको अप्लाई कर लो हर जगह पे। इस फ्रॉम GS3 साइबर सिक्योरिटी से रिलेट करेंगे। दिस एग्जाम्पल कैन बी पुट कि न्यू एमर्जिंग थ्रेट्स क्या है। न्यू एमर्जिंग थ्रेट इज दिस AI क्लॉड मिथोस करके AI है। ये AI इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आगे आप मैनुअली हैक करते थे, लेकिन अब AI के थ्रू होगा। AI फाइंड करेगी, अटैक करेगी और अडेप्ट भी कर लेगी खुद ब खुद। वर्किंग इसकी क्या है कि ये खुद से एक सिस्टम में क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसको वो डिटेक्ट करेगी और खुद ब खुद अटैक कर देगी विदाउट एनी मैनुअल परमिशन रिक्वायर्ड। जीरो डे वल्नरेबिलिटी, ये कंसेप्ट की बात की गई आर्टिकल में। जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या है? हिडन मिस्टेक्स हैं, कुछ डेवलपमेंट में कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं जो कंप्यूटर्स में, ये उसको भी अटैक कर लेगी। आपके पास जीरो डे होगा, आपके पास आपको टाइम ही नहीं मिलेगा उसको फिक्स करने का, उससे पहले आपका कंप्यूटर हैक हो गया होगा। कंसर्न्स क्या है इंडिया के लिए? इंडिया के पास कोई डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन नहीं है जो AI सेफ्टी को लेके करता हो कुछ। फ्रंटियर AI एवोल्यूशन के लिए कोई नहीं है, AI सेफ्टी टेस्टिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। आर्टिकल में ही बताया गया कि इस्टेब्लिश करो इंडियन AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट। सेकंड, जो हमने देखा है हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, इंडिजिनियस AI एंड साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम बनाओ। डू नॉट रिलाई अपॉन एनी फॉरेन कंपनीज और वगैरह, आत्मनिर्भर बनो AI सिस्टम्स में। Then you will use this example of Claude Mythos in hybrid warfare, information warfare, economic warfare and national security strategy. So आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करो और थोड़ा सा माइंड ओपन करो कि अब हमारे पास AI से भी रिस्क आ रहे हैं in cyber security. Next article is from GS2 Education. We will relate with the sociology, illiteracy and disparities in education, social change in India वाले टॉपिक्स है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ये यूज़ होगा। द रिपोर्ट वॉज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स दैट वी हैव रिसीव्ड थ्रू RTI। उसमें पाया गया 1 in every 3 फैकल्टी पोस्ट वेकेंट इन टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट, दैट इज आउट ऑफ इतनी सेंक्शनड पोस्ट में से 7,132 पोस्ट रिमेन वेकेंट। तो इससे क्या होगा? इससे होगा अंडरमाइनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। उसमें यूज़ करो। आप बताओ कि वैकेंसीज हैं टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, तो उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल सफ़र। Next article is from GS2 IR. This can be quoted as an example in India-Afghanistan relations, where India has condemned Pakistan's airstrike against Afghanistan. Only as an example. Next article is from GS3 Environment Climate से। Here we have some bodies जिसको आप याद रख सकते हो या फिर एक बार ही देख सकते हो कि बॉडीज़ हैं क्या। UNFCCC सब्सिडरी बॉडीज़, ये मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसी कुछ बॉडीज़ होती हैं। सो दीज आर द टेक्निकल वर्किंग बॉडीज़ जो थ्रू आउट द ईयर वर्क करती है अंडर UNFCCC। इसमें 2 तरह की बॉडीज़ आती हैं। एक है सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, जो कि एडवाइसरी बॉडी है। ऑब्वियसली एडवाइस कर रही है तो एडवाइस देगी। तो सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और ये बॉडी अगर इम्प्लीमेंटेशन है नाम में ही तो ये इम्प्लीमेंट करेगी। फिर हमारे पास ग्रुप ऑफ 77 आता है। ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। इसको हम पता है कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? हम इसको क्लाइमेट चेंज में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें बताना है कि डेवलपिंग कंट्रीज़, जैसे एक क्वेश्चन आता है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम उसमें इसको एग्जाम्पल के तौर में यूज़ कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज़ आर ऑल्सो देयर जो इस कॉज के लिए वर्क कर रही हैं। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो डिमांड करता है क्लाइमेट एडेप्टेशन फाइनेंस, दो डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करता है इन द field of climate. LMDC, nations that organize as negotiating bloc in international forums like UN and WTO, ये भी ऐसा ही है, like minded developing countries. Then basic bloc भी ऐसा ही है जिसमें ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना ये भी बात करते हैं क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस की। लास्ट आर्टिकल इज़ फ्रॉम GS3 साइंस एंड टेक से रिलेट करेंगे। इसमें उन्होंने बोला है ब्लड टेस्ट के थ्रू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लंग कैंसर है कि नहीं 5 years पहले ही। देखो, ब्लड टेस्ट में ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ब्लड प्लाज्मा में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स के सेट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटोम। ये याद रखो। अब देखते हैं कैसे होगा। कुछ सैंपल लिया जिसमें हार्ट पेशेंट्स थे और ऐसे पेशेंट्स थे जिनको इन्फ्लामेशन थी। उनको एक ड्रग दी कैनाक्यूमैब करके, ठीक है। ये ड्रग से क्या पाया गया कि आफ्टर कुछ देर जब उन्होंने ड्रग ले ली उसके बाद उन्होंने टेस्ट किया तो पाया गया कुछ 14 प्रोटीन सिग्नेचर, मतलब कि कुछ यूनिक पैटर्न, 14 प्रोटीन का यूनिक पैटर्न इनमें पाया गया।
अब ये वो पेशेंट्स थे जिनके चांसेस थे ड्रग कैंसर होने के। बस हमने इस आर्टिकल में यही याद रखना है कि 14 प्रोटीन सिग्नेचर क्या है। 14 प्रोटीन्स का ऐसा अरेंजमेंट जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि लंग कैंसर के चांसेस हैं कि नहीं। सेकेंड चीज़ हमने याद रखनी है, हम इंटायर सेट ऑफ प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। एंड थर्ड हमें याद रखनी है इस मेडिसिन का नेम, किसके लिए ये, इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू।